अच्छा कंदील, ये तो तुम्हारा एक साइड हो गया जो तुम सोशल वर्क करती हो, लोगों की खिदमत करती हो, और होनी भी चाहिए। तुम्हारे जैसे लड़कियां बहुत कम है इस माशरे में कि वो आए और इस छोटी सी उम्र में छोटी सी एज के साथ वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, आप करें, अल्लाह करे कि आप मज़ीद ऊंचाइयों पे जाए। अच्छा, हम आते हैं तुम्हारी दूसरी साइड पे जो आप रूहानी इलाज आप करती हैं। तो ये कैसे होता है, मतलब ज़रा हमें खुल के समझाएं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। रूहानी इलाज जो है, मैं मतलब हर दौर का एक फ़कीर है, हर दौर में अल्लाह ताला ने अपना एक वली भेजा है। तो इसी तरह एक दौर का जो है एक वली गुज़रा है, सैयद सफदर अली बुखारी साहब इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं। तो ये उनको फैज़ अता हुआ था कि आप सूरह रहमान सुना के कारी अब्दुल बासित साहब की आवाज़ में सुना के लोगों की परेशानियां हल करें, उनकी परेशानियों को दूर करें, उनकी उलझनों को दूर करें, बीमारियों को ठीक करें। तो एक तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट सिर्फ नहीं होता सब कुछ। मैंने कई ऐसे लोग भी देखे जिनको कुछ नहीं चाहिए होता, ना फाइनेंशियली सपोर्ट, किसी किस्म का सपोर्ट नहीं चाहिए होता, उनको इंटरनली बहुत से उनकी जंगें चल रही होती है, स्पिरिचुअली सपोर्ट चाहिए होता है, उनको हेल्प चाहिए होती है, स्पिरिचुअली ट्रीटमेंट चाहते हैं वो। तो मैं उन पे भी काम करती हूँ कि अगर किसी के अंदर की जंग, अगर वहाँ पे अमन आता है तो उसका भी अलग से मतलब आप दिल की बात कर रहे हैं, अंदर की जंग, मतलब दिल की अंदर जो हमारे जंग चल रही है, एक अपने आप से जो जंग चल रही है उसकी बात करिए आप। एग्जैक्टली यही बात है। आजकल लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, हर इंसान अपने दिल में एक गम लिए बैठा हुआ है, उसको वो अंदर से टॉर्चर कर रहा है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकता और इंटरनली ख़ुद को टॉर्चर करता है। तो अगर उस लिहाज से भी सपोर्ट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर। कंदील मतलब पख्तो के जैसे का जमंगा ज़्यादातर व्यूअर چې کوم دغه پښتانه هم دی په دغه ورکینو زدا غوی ته پاره وایم कंदील وایي چې زدا هغه خلکو علاج کومه کم خلک چې د خپل زړه کې په خپل دن په جسم کې د خپل ځان سره په جنگ باندې وي. فار ایگزامپل څنګه په جنگ باندې وي، مطلب هغه وایي یاره زه وخمی ما زه او د چردامو کما بیا زه دوباره لاړ شم، مطلب یو خپل سوچ کې ګرځي راګرځي، دغه دماغ کار نه کوي، هغه ناست وي خو دغه دماغ دلته نه وي، یا د څه په وجه باندې هغه زړه مات شوی وي، یا کور کې جګړه شوي، یا ښځې سره جګړه شوي، یا وغیره وغیره، وروڼو خویندو خو یو بل سره جګړه شوي، نو هغوی هغه زړه چې کوم مات شوی، نو कंदील وایي چې موږ هغه زړه روغو د خپل دغه تھیریپی په تر باندې. اوس هغه تھیریپی کومه یوه ده، راځي چې هغه ته پوښتو. اچھا آپ مجھے بتائیں کس طرح ان کا علاج کرتی ہیں؟ آپ نے بتایا تھا مجھے کہ میں کچھ تھیریپی کرتی ہوں، تو تھیریپی کیا ہے اصل میں؟ سورہ رحمان کلام پاک میں بہت سارے کوئی جو ہے آج کل سارے میڈیکل ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن کلام پاک کو کوئی اتنی خاص وہ نہیں دے رہا. اس میں ہر چیز کا علاج ہے. سورہ رحمان کی تھیریپی ہے اور یہ الٹیمیٹ ریمیڈی ہے. اس میں آپ کو جو ہے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ہر مسئلے کے لیے آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں. ہر مسئلے کے لیے ہم یہاں پہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ کے کلام کو آزمایا نہیں جاتا، اور الحمدللہ اس سے کئی پیشنٹس کو جو ہے ریکور ہوئے ہیں. اچھا، سب سے پہلے میں آپ سے ابھی جو حالات چل رہے ہیں کرونا کی چل رہے ہیں، مطلب ساری دنیا اس کا شکار ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے سارے مطلب کاروبار ان کے خراب ہو چکے ہیں، بہت غریبوں کو زیادہ نقصان پہنچا ہے. تو کرونا کا اگر کوئی مریض ہو تو وہ کیسے یہ علاج کرے گا؟ اسی سے سورہ رحمان سے کئی ایسے پیشنٹس، کئی لاتعداد پیشنٹس ریکور ہوئے ہیں کرونا سے، اتنا کہ وہ کافی سیریس اسٹیج پہ تھے اور الحمدللہ اس سے وہ ریکور ہو گئے. اس سے کینسر، ڈپریشن، ہارٹ پیشنٹ، ہیپیٹائٹس ای، ہر قسم کا الجھن، سب سے زیادہ موسٹ جو آج کل جو بہت زیادہ پھیلی ہے ڈپریشن، الحمدللہ اس سے اس کا ٹریٹمنٹ پاسبل ہے. تو کیسے طریقہ کار کیا ہوگا؟ میتھڈ اس کا یہ ہے کہ اس کی باقاعدہ ویب سائٹ ہے اور ایپ بھی ہے دا الٹیمیٹ ریمیڈی، اور اس کے علاوہ ویب سائٹ ہے www.alrahman.com. تو اس کا جو ہے قاری عبدالباسط صاحب کی آواز میں سورہ رحمان ڈاؤن لوڈ کر لیں بنا ترجمے کے، اور وہ 7 ڈیز کی تھیریپی ہے. آپ نے 7 ڈیز ایسے متواتر سننا ہے، ناغا بیچ میں نہیں لانا، اور اس میں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سورہ رحمان آپ پلے کر لیں پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ، خود کو اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش کر کے آپ وہ پوری سورہ رحمان سنیں بند آنکھوں سے. اس دوران آپ کو جو ہے آپ ایسا تصور کریں کہ آپ یہاں کہیں نہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہیں، ٹھیک. اور جب ساری سورہ رحمان آپ سن لیں اس کے بعد آپ آنکھیں کھولیں. اس کی آڈیو ہوگی کچھ اسی طرح 20 منٹس اور 51 سیکنڈس. تو بیٹھ کر ایزی ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے آپ کو، لیٹ کر آپ ایزیلی سن سکتے ہیں، جیسے آپ کو ٹھیک لگے. سن کے اس کے بعد آپ بیٹھیں، آدھا گلاس پانی لیں، دوبارہ سے آنکھیں بند کریں اور 3 بار دل میں ڈوب کر محبت سے، شدت سے، پیار سے
अल्लाह को 3 बार पुकारें दिल में, बिना होंठ हिलाए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और उन्हीं बंद आँखों से आप 3 सिप्स में या 3 सांसों में आप पानी पी लें। और माशाल्लाह से पानी का जायका आबे ज़मज़म जैसा होता है या गुलाब की खुशबू होती है। तो ये 7 डेज़ की थेरेपी है। अच्छा, अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है या कोई सिस्टम नहीं है कि वो उस पर सुने, तो वो अगर ख़ुद पढ़े या उसको कोई दूसरा सुना दे, तो क्या उससे भी हो सकता है? कमाल सारा कारी अब्दुल बासित साहब की आवाज़ में है। इसी तरह मैं भी इसी हवाले से काम कर रही हूँ, क्योंकि कई ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स एंड्रॉयड नहीं होते। तो मैं अभी यही सोच रही हूँ कि मेरे पास एक ऐसी जगह हो कि जहाँ पे मैं ये सेटअप करूँ, स्पीकर्स वगैरह मेरे पास हों, तो वहाँ पे हर बंदा, हर पेशेंट आए, 7 डेज़ अपनी थेरेपी ले और जाए, ठीक हो। मतलब अगर आप ये कहना चाहती हैं कि कोई अगर दिल का बीमार है या किसी भी बीमारी का शिकार है, तो कंदील का मतलब ये है कि वो आए और ये जो मेरी थेरेपी बता रही हूँ ये सुने, और उसके बाद जो ये थेरेपी मुकम्मल हो जाए तो जाके वो अपना टेस्ट दोबारा करें। इंशाल्लाह वो टेस्ट उनका पॉजिटिव आएगा, मतलब उसको जो बीमारी होगी वो उसको दोबारा नहीं होगी। अच्छा, ज़रा मुझे ये भी बताएं कि कुछ लोग हमारे इस दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद वो तुम्हारी बातों पे यकीन ना करे, तो उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम हैं? इसमें ऐसा है कि हर नेगेटिविटी हर जगह पे होती है, राइट। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आप ये सुने और इससे ये होगा उससे होगा, मेरी बात ना माने। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये हमारे रब का कलाम है, उसका लिखा हुआ है, ठीक है, उनका नाजिल किया गया है। और आप ये सुनो, कुछ नहीं जाता हमारा, कोई इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई मेडिसिन लेना नहीं है, कोई थकावट का काम नहीं है, कुछ उठना बैठना नहीं है, कुछ एक्सर्शन नहीं है। आप सुनो और मुस्तफ़ीद हो जाओ। और जो हम मतलब वीडियो तो हर किस्म के लोग भी देखते होंगे, इसमें गैर मुस्लिम भी होंगे, तो उनके लिए वो लोग बीमार हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? इसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की कोई कैद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन दिनों 5 पेशेंट्स को डील कर रही हूँ, और उसमें एक नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, और माशाल्लाह से अभी वो मुसलमान होना चाहते हैं। तो इसमें कोई कैद नहीं है, नॉन मुस्लिम भी सुन सकता है, और वो उसका वही रिज़ल्ट है जो एक मुसलमान को दिया जाता है। अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला का करम हर इंसान पे है, पूरी इंसानियत के लिए। इसमें ये ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान होगा, कोई गुनाहगार के लिए इसमें रहमत नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अच्छा, और मुझे ये भी बताया साथ में कि दोनों काम आप कर रही हैं, तो इतना टाइम तुम्हारे पास होता है कि जो तुम्हारे मरीज़ आते हैं और उधर से आपको दूसरा जो सोशल वर्क का काम करी वो भी कर रही है, तो दोनों मैनेज कर सकती हैं आप इतने टाइम में? मैं कर लेती हूँ। ज़्यादातर पेशेंट्स मेरे ऑनलाइन होते हैं, विजिटिंग पेशेंट्स इतने नहीं होते, क्योंकि उनके साथ ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है। तो ऑनलाइन पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं मेरे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैनेज कर लेती हूँ। और आप उनका कोई मुआवजा लेती हैं जब आप कोई पेशेंट आपके पास आ जाता है? दुआ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। किसी के अंदर का कोई जंग, उसकी वहाँ पे अमन हो गया है, मेरे लिए ये काफ़ी है। और ये तो काम ऐसा है कि इसमें अल्लाह ताला दिल का सुकून देता है। तो मैं जितने लोगों के लिए काम करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली इतना सुकून अंदर भर दिया जाता है कि मुझे लगता है जैसे मुझे इसकी सैलरी मिल गई है। तो अंदाज़ा है कोई कि कितने मरीज़ हैं आजकल आपके? बहुत हैं, मतलब ऑनलाइन तो फ़िलहाल मैं FB पे जिनको डील करी वो 5 पेशेंट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैं काफ़ी लोगों को मैं डील कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितने ठीक हुए हैं इसमें? बहुत ठीक हुए। कैंसर के पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं अपना जिक्र करूँ तो मुझे ख़ुद भी ब्रेन इशू था और सीरियस इशू था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर हो गई। मेरी अपनी वालदा को उनके दिल का एक वाल लीक था, और माशाल्लाह से अभी उनकी वो लीकेज ख़त्म हो गई है। मैंने डिप्रेशन के पेशेंट्स भी ठीक हुए। कई लोग बस उलझन का शिकार कई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से पेशेंट्स रिकवर हुए। कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है तुम्हारे साथ कि तुमने कहा हो कि यार ये मतलब तंग किया हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे शुक्र अल्लाह का, मुझे सपोर्ट घर से मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला की इस मुकाम पे कि मुझे अल्लाह ने इन कामों में लगा दिया है। दुनिया में बहुत से काम है करने को, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे इस काम में बिज़ी कर दिया है। अच्छा कंदील, कितने अरसे से आप ये सोशल वर्क कर रही हैं? मैं तो 2018 से सोशल वर्क में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और 2019 में मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी।
मतलब तकरीबन 2 साल तुम्हारे हो गए और मतलब ये चल रहे हैं ये जो तुम्हारा सिलसिला है। अच्छा कंदील, मैं ख़ुद भी तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हो और जैसे लोग आते हैं उनके पास ये थोड़े से पैसे आ जाते हैं तो उनका रवैया भी चेंज हो जाता है और ये सब कुछ वगैरह, तो क्या तुम में भी वो चीज़ें आएगी या कुछ आई भी हैं? नहीं, अल्लाह कभी ऐसा वक्त भी ना लाए। एक्चुअली इंसान जब खुद कुछ फेस करता है उसके बाद जब नीचे से ऊपर जाता है तो वो फिर अपनी औकात जानता है। जो बंदा हमेशा ऊपर ही रहा हो वो कह सकते हैं आप, लेकिन जो बंदा नीचे से ऊपर जाता है वो अपनी औकात जानता है कि मेरी बुनियाद कमज़ोर थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमेशा गुरूर व तकब्बुर से बचाए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिस्पेक्ट है। कई मैंने ऐसे लोगों को फेस भी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कंदील, ज़रा मुझे ये बताएं कि कुछ लोग जो नेगेटिव सोचते हैं ज़्यादातर लड़कियों के बारे में, उन लोगों के लिए आखिरी तुम्हारा क्या पैगाम होगा? नेगेटिव सोच के रहमान ऐसी थेरेपी है, मैं उनको भी यही रेकमेंड करूँगी क्योंकि ये इतनी मतलब ये इसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, इंसान में पॉजिटिविटी आती है। हर चीज़ बंदा अगर कुछ नेगेटिव देख भी रहा है तो उसमें भी हमें फिर पॉजिटिव चीज़ें हम खोज रहे होते हैं, तो उनको भी मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप ये सुनें। चलें, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। ये हमारे साथ कंदील मौजूद थी چې کومې د خبرې موږ سره خپلې وکړلې د ژوند چې کوم هغه په خپل ژوند کې یا په روزمره ژوندګۍ کې هغوی څه کارونه کوي. قندیل هغه جینۍ ده کومه چې د خپل کور نه د خپلې مور د خپل وروڼو سره لګیا وي، دغه خلکو خدمت کوي. دا دغه خلکو دپاره یا دغه ماشومانو یا دغه مور پلار دپاره یو مثال دی. کوم زنانه یا کوم ماشومان چې د کور راوتل غواړي، دغه خلکو هیلپ یا مدد کول غواړي، خو د هغوی هغه والدین هغوی بهر نه راپرېږدي، د هغوی دپاره قندیل یو مثال دی. الله دې وکړي چې قندیل په دغه خپل کار کې نور هم مخکې لاړه شي. زمونږ سپورټ، زمونږ هر دواګانې به د قندیل سره همیشه وي. قندیل سره کو تاسو کانټیکټ کول غواړئ نو هغوی چې تاسو موږ سره په دغه کمنټس کې رابطه کولی شئ. موږ به تاسو دا چې تاسو کوم قسم هیلپ ضرورت وي، کو هغه ستاسو د بیمارۍ وي یا ستاسو د مدد د ظاهري طور باندې د راشن یا د څه هم ضرورت وي، نو موږ به تاسو ته انشاءالله چې څومره زموږ نه کېږي هغه به کوو. قندیل تاسو بیا یو ځوارې ډېره مهرباني چې تاسو موږ له ټایم راکړو. کتونکو زموږ د پروګرام ټایم ختم شو، انشاءالله نوې پروګرام کې ملاویږو د یو نوې مېلمه سره. موږ سره اوسئ.